Friends, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic लाइफ साइकिल ऑफ HIV। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग HIV का स्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV, सिम्टम्स ऑफ एड्स एंड प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ओके, HIV infects only those cells of human in which CD4 receptors are present. That have CD4 receptors. CD4 receptor, CD means cluster of differentiation. Cells of our body having CD receptors are macrophages cell, neuroglia, and T lymphocyte. In these cells, HIV completes their life cycle in mainly two cells, macrophage and T lymphocytes. You know T lymphocyte is of different types: helper T lymphocyte, suppressor T lymphocyte, memory and killer. So HIV multiply in helper T lymphocyte cell. Okay. HIV multiply first in macrophages cell. Multiply first in macrophages cell. Okay, multiply in macrophages cell as during incubation period. It means when HIV multiply in our body or in macrophage cell, there is no any symptoms appears in our body. जिस समय वह मैक्रोफेज मल्टीप्लाई करेगा उस समय कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा। मैक्रोफेजेस responsible for the increases the number of HIV in our body and also acts as HIV factory. Macrophage are also called HIV factory. Okay, later multiply in, later develops in helper T lymphocyte. पहले मैक्रोफेज सेल में टी लिम्फोस, उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स में, ड्यूरिंग विच symptom appears. It means when HIV enters in helper T lymphocyte, then different T symptoms appears in our body. Okay, now we see लाइफ साइकिल ऑफ HIV इन मैक्रोफेजेस और इन टी लिम्फो। तो पहले कहा मैक्रोफेज में, अब मैक्रोफेज में वो कैसे मल्टीप्लाई करता है इसको देखिए। लाइफ साइकिल इन मैक्रोफेजेस। ओके, फर्स्ट HIV enters in body through blood, serum, other blood body fluids. Okay, then passes in whole body parts. With the help of blood and other body fluid. In different body parts,
HIV comes in contact of macrophages. Comes in contact of macrophages. Macrophages cell have CD receptors that is recognized by GP120 of HIV. It means GP glycoprotein 120 recognizes the CD4 receptor of macrophage. और जब रिकॉग्नाइज कर लेगा, रिजल्ट क्या हो गया, एक दोनों दूसरे के कांटेक्ट में आ गया. आफ्टर दैट सम कन्फॉर्मेशनल चेंजेज अकर्स इन HIV. सम कन्फॉर्मेशन changes occurs in HIV that allow to recognize the another receptors. Okay, after that conformational changes in virus, जैसे ही दोनों मिला उसमें कुछ न कुछ चेंज होगा. conformational changes helps to virus with attached or 1 minute. Conformational changes helps to virus to attach another co-receptors. पहले तो CD4 रिकॉग्नाइज किया GP120 को, उसके बाद उसमें कुछ चेंजिंग हो गया. अब क्या किया हुआ, दूसरे को रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज कर लिया, उससे अटैच हो गया. एंड CCR5 मीन्स साइटोकाइनिन रिसेप्टर टाइप 5. दिस इज साइटोकाइन रिसेप्टर टाइप 5. एंड दिस रिसेप्टर helps in entry of HIV by endocytosis process. रिजल्ट क्या हुआ कि अब HIV मैक्रोफेजेस सेल के अंदर इंटर कर गया. अब वहां मल्टीप्लाई करेगा. नेक्स्ट स्टेज इन मैक्रोफेज. मैक्रोफेज के अंदर चला गया है. इन मैक्रोफेज RNA जीनोम ऑफ वायरस फॉर्म्स DNA with the help of reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme. Okay, means जो पहले वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA था, अब वह बना दिया DNA. देखिए, अब देखिए वायरल DNA is incorporated in host DNA with the help of integrase enzyme. With the help of integrase enzyme and directs the host DNA to produce वायरल RNA. ठीक है, यानी पहले वह RNA से DNA का फॉर्मेशन किया, वह DNA होस्ट DNA के साथ अटैच हो गया और होस्ट DNA का मशीनरी का यूज करने लगा. और जब होस्ट DNA रिप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बनाया क्या, प्रोड्यूस वायरल DNA. वायरल DNA may be of two types. Sorry, viral RNA. One is called genomic RNA, other is mRNA.
जीनोमिक आरएनए प्रोड्यूस वायरल आरएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ आरएनए, and messenger RNA forms protein. With the help of RNA and protein, new HIV are formed. Because you know HIV में दो पार्ट है, प्रोटीन भी है, आरएनए भी है. तो एक आरएनए बना रहा है, दूसरा प्रोटीन बना रहा है. रिजल्ट क्या हुआ? HIV का फॉर्मेशन हो गया. इट मीन्स मैक्रोफेजेस कंटिन्यू replicate, produce viral progeny and acts as HIV factory. ठीक है, तो यहां क्या हुआ? माइक्रोफेजेस के अंदर HIV का मल्टीप्लीकेशन हुआ, उसका नंबर इंक्रीज कर गया. अब देखिए, ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ HIV इन मैक्रोफेजेस सम चेंजेस, सम म्यूटेशंस अकर्स एंड दैट म्यूटेशन डू नॉट अलाउ टू HIV टू अटैच विथ CCR5. तो CCR5 अब उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया. म्यूटेशन होने के कारण अब वह CCR5 को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है. CCR5 प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोफेज, और जब इसको रिकॉग्नाइज करेगा इट मींस इट इज नॉट एबल टू इंटर अगेन इन माइक्रोफेजेस. यहां के बाद वह फिर से माइक्रोफेज में इंटर नहीं करेगा. तब कहां जाएगा? तब वो जाएगा हेल्पर टी सेल में. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन HIV प्रोजेनी releases out by exocytosis without damaging the मैक्रोफेजेस. याद रखना है कि मैक्रोफेज से जब वह बाहर निकलता है, मैक्रोफेज को डैमेज नहीं करता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा वह बाहर निकलता है. ठीक है, अब देखिए, आफ्टर डेट ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन सम चेंजेस और म्यूटेशंस अकर that do not allow the virus to attach with CCR5. अब उसके साथ वो अटैच नहीं करता है, तो किसके साथ अटैच करेगा? म्यूटेशन के कारण जीपी में कुछ न कुछ चेंजिंग हो गया. म्यूटेशन इन जीपी अलाउड टू HIV अटैच्ड विथ न्यू को रिसेप्टर्स. इट मीन्स म्यूटेशन इन GP120. GP120 में म्यूटेशन हुआ, हेल्प्स इन attachment of virus with another co-receptor. That is CXCR4. CXCR4, also called fusin or CD184. It is a type of co-receptor and this receptor present on the surface of, ये कहाँ मिलेगा? Present on the surface of helper T से.
अब इसके बाद मैक्रोफेज से निकलने के बाद HIV इंटर करेगा हेल्पर टी सेल में। ओके, इन हेल्पर टी सेल जैसा फिर वहां किया था, जीन का यूज करेगा, मीन्स RNA फॉर्म्स, RNA प्रोड्यूस DNA, DNA इज इनकॉर्पोरेटेड इन होस्ट DNA। यानी सिंपल अगर हम इसके बदले में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं HIV multiply in TH cell, means helper T lymphocyte cells. Okay, and after that देखिए, जब हेल्पर टी सेल से निकलेगा तो हेल्पर टी सेल को क्या कर दिया, वह डैमेज कर दिया, रप्चर कर दिया, रिजल्ट क्या होगा, वह सेल डाई कर जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे मैक्रोफेज से HIV सेल निकलेगा, अलग अलग कहा गया, हेल्पर टी सेल में, और उसको डैमेज कर दिया, फिर यहां से निकला, फिर किसी दूसरे में, एंड अगेन इंटर्स इन अनदर TH सेल, फिर से यह TH सेल में इंटर कर जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, कंटिन्यू T लिम्फोसाइट सेल्स का नंबर घटते चला जाता है, और वही मेन सिम्टम्स माना जाता है एड्स का। ओके, चलिए, तो हमने देखा लाइफ साइकिल ऑफ HIV इन माइक्रोफेजेस और इन T लिम्फोसाइट सेल और हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल्स। ओके, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। इस फिगर को ध्यान दें, NCERT में फिगर है। सबसे पहले यहां HIV है, प्रोटीनस कोट RNA, मीन्स वायरल RNA, दिस इज वायरल RNA, enters inside the cell. This cell may be macrophage और TH सेल, मीन्स हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल, दोनों में से कोई हो सकता है। अब पहले इंटर किया तो आया यहां वायरल DNA, क्या है, वायरल DNA, सॉरी वायरल RNA, नॉट DNA, वायरल RNA गेट्स कन्वर्ट्स इनटू वायरल DNA with the help of reverse transcriptase enzyme, with the help of reverse transcriptase enzyme. Now this is incorporated in host genome. This is nucleus. Inside the nucleus host DNA genome is present. Now viral DNA enters inside the host genome, and now host genome produce again viral RNA, फिर से क्या बना दिया, वायरल RNA का फॉर्मेशन किया, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन किया ड्यू टू मैसेंजर RNA, एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ वायरल RNA फिर से क्या बन गया, प्रोजेनी वायरस। दीज आर प्रोजेनी वायरस रिलीजेज आउट। ध्यान क्या रखना है कि जब मैक्रोफेज से निकलेगा, मैक्रोफेज को डैमेज नहीं करेगा, लेकिन अगर हेल्पर टी सेल से निकलेगा, हेल्पर टी सेल को डैमेज करेगा, और इस तरह से फिर अगेन इंटर्स इन न्यू सेल, अगेन इंटर्स इन न्यू सेल। ओके, चलिए
नाउ सी सिम्टम्स. सिम्टम्स ऑफ एड्स ऑल्सो अपियर्स इन डिफरेंट स्टेजेस. अलग अलग स्टेज में. सबसे पहले जब HIV इंटर्स किया तब उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फेक्शन सिम्टम्स. उसके बाद वह कुछ दिनों तक बॉडी के अंदर रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा. एसिम्प्टोमेटिक्स कैरेक्टर्स और सिग्निफिकेंस, ठीक है ना. इसके बाद बोलते हैं एड्स कॉम्प्लेक्स रिलेटेड सिम्टम्स एंड फुल ब्लोन सिम्टम्स. तो सिम्टम्स का भी कई स्टेज है, उसको देखते हैं. नाउ सी सिम्टम्स इन डिफरेंट स्टेजेस. फर्स्ट, एक्यूट HIV इन्फेक्शन इन अर्ली स्टेज. हेडक, स्किन रैश, लो ग्रेड फीवर. यह जो चलेगा अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स तक. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज एसिम्प्टोमेटिक फेज. सिम्प्टोमेटिक, नो सिम्टम अपीयर, ओनली swollen in lymph node occurs, and this stage may be few months to few years, up to 10 year तक भी हो सकता है, up to 10 years. Okay, in this stage HIV multiply in macrophages. Then AIDS related complex called mild infection, fever, prolonged cough, रिपीटेड एपिसोड ऑफ डायरिया. डायरिया कंटिन्यू होते रहेगा. एंड वेट लॉस. एंड ड्यू टू लॉस ऑफ वेट HIV इज ऑल्सो कॉल्ड स्लिम डिजीज. ऑल्सो कॉल्ड स्लिम डिजीज. ओके, याद रखिएगा. नेक्स्ट, फुल ब्लोन एड्स. जब बहुत ही ज्यादा इसका नंबर हो गया और यह हेल्पर टी सेल को डैमेज करना शुरू कर दिया, बॉडी में हेल्पर टी सेल का नंबर बहुत ही कम हो गया, तो वैसे कंडीशन में डिमेंशिया का केस आएगा. डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी. और अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज अकर्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब बताया था कि अपॉर्चुनिटी मिला. पहले नॉर्मल कंडीशन में डिजीज की पॉसिबिलिटी नहीं था, लेकिन जैसे ही हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स का नंबर घट गया तब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया. उसको नाम देते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज, सच एज ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कैंसर, कैंडिएसिस, PTC. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज अकर्स इन पीरियड ऑफ फुल ब्लोन एड्स. ओके, नाउ वी सी डायग्नोसिस. One is a screening test. Second is confirmatory test. A screening test by ELISA बताया जा चुका है. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ELISA means enzyme linked immunosorbent assay. And confirmatory test is Western blot, means blotting process. Western blot means presence of viral RNA in body. So these are the two methods of diagnosis. Next, treatment. अब देखिए ट्रीटमेंट में वायरस के अंदर, HIV वायरस के अंदर जो भी एंजाइम है उस एंजाइम के एक्टिविटी को अगर समाप्त कर दिया जाए, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, बॉडी के अंदर RNA जीनोम इंटर किया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनएक्टिव हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा? वायरल DNA का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए ही मेडिसिन का यूज किया जाता है, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, रिजल्ट क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, DNA का फॉर्मेशन नहीं होगा. जैसे जाइडोबुडीन, ठीक है, अस्टाबुडीन. एग्जाम्पल जाइडोबुडीन, अस्टाबुडीन, दीज आर द मेडिसिन. ओके, चलिए. और ट्रीटमेंट में इसी तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हमने इनएक्टिव किया, अगर चाहें तो प्रोटीएज को भी इनएक्टिव करें. यूज ऑफ
प्रोटीएस, इंटीग्रेस इनहिबिटर। ठीक है, ये हुआ ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में हम लोग प्रिवेंशन, अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर, अवॉइड यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल, रेजर, ईटीसी। ठीक है, और इसके लिए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाको याद रखेंगे आप, फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स। एड्स से बचने के लिए प्रचार प्रसार किया करता है। इसी में फिर WHO का भी कुछ रोल है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने देखा लाइफ साइकिल, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। इसमें बोर्ड के लिए HIV का लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आया करता है। ठीक है, चलिए, ओके।